ایک طرف پاکستانی افواج دشمنوں کے خلاف صف آراں ہیں اور پوری طرح جنگی مشقیں کر رہے ہیں تاکہ بھارت جیسے دشمنوں کو حملے کی صورت میں منہ توڑ جواب دیا جائے، اور بھارت سے حال ہی میں ایسے بیانات سامنے آئے ہیں جس سے اس کے ناپاک عزائم کا پتہ چلتا ہے اور اس نے اپنی ایئر فورس کو جنگی مشقوں پر بھی لگا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان نے بھی پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاکستانی افواج کی تیاریاں عروج پر ہیں، اور حال ہی میں پاکستانی ایئر فورس نے ہنگامی بنیادوں پر موٹر وے پر جنگی جہازوں کی لینڈنگ کی مشقیں کی ہیں۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ بلاول اور زرداری بھارتی اشاروں پر پاکستان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں اور ریاست کے خلاف نیا محاذ کھولنا چاہتے ہیں۔ بلاول زرداری نے گزشتہ روز پاکستان کے خلاف بیان دیتے ہوئے الزام لگایا کہ پاکستان کی حکومت دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ یہ بیان دے کر بلاول نے ثابت کر دیا کہ اس کے اندر بھٹو کا نہیں بلکہ زرداری کا خون دوڑتا ہے، وہی خون جس نے اسے ریاست کے خلاف بولنے پر اکسایا، وہی خون جس نے اسے پاکستان دشمنوں کا ساتھ دینے پر اکسایا۔ بلاول زرداری نے بھارت کی گود میں بیٹھ کر جو ریاست کے خلاف بیان دیا ہے وہ کسی طور پر بھی قابل معافی نہیں ہے۔ آصف زرداری نے بلاول کو اس راستے پر چلا دیا ہے جو اسے بھٹو تو نہ بنا سکا، البتہ بھارتی ایجنٹ اور غدار ضرور بنا دیا ہے۔ یہ ہے وہ بلاول جو نمک پاکستان کا کھاتا ہے اور دشمن کی بولیاں بولتا ہے۔ کب تک ریاست ان جیسے گندے انڈوں کو برداشت کرتی رہے گی؟ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ریاست ان کے خلاف ایسی کارروائی کرے اور ان کو ایسی عبرتناک سزائیں دے جو ہر غدار کے لیے نشان عبرت ہو۔ اطلاعات کے مطابق اس وقت آصف زرداری پوری طرح سے بھارتی خفیہ ایجنسیوں سے رابطے میں ہیں اور انہوں نے زرداری اور نواز شریف کو خصوصی پیغامات بھجوائے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے جو انہوں نے بھجوایا ہے؟ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین کرام، بھارت کے دو ایجنٹ آصف زرداری اور بلاول زرداری جن پر کرپشن کے مقدمات چل رہے ہیں، ان کو نیب کے سامنے پیش ہونے کے لیے اسلام آباد طلب کیا گیا تھا، جہاں بلاول زرداری نے اپنے کارکنوں کو اکٹھا ہونے کی ہدایت کی۔ جب بلاول اور زرداری نیب کے سامنے تفتیش کے لیے پیش ہوئے، اس وقت پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے ہلہ بول دیا اور اتنا ہنگامہ برپا کیا کہ معاملات پولیس کے قابو سے باہر ہو گئے۔ اسی طرح ہنگامہ آرائی کرنے والوں کی بڑی تعداد غنڈوں اور بدماشوں پر مشتمل تھی جو کہ تربیت یافتہ غنڈے معلوم ہوتے تھے، اور یہ وہی کرائے کے دہشت گرد تھے جن کو ہر سیاسی جماعتیں 2-2 ہزار روپے دے کر استعمال کرتی تھیں، اور انہی غنڈوں اور دہشت گردوں کو بے نظیر کے قتل کے بعد ہنگامہ آرائی کے لیے استعمال کیا گیا، اور پھر 12 مئی کو قتل عام کرنے کے لیے بھی انہیں استعمال کیا گیا تھا۔ اسی طرح یہ بھی اطلاعات آئی ہیں کہ آصف زرداری نے دیگر جماعتوں سے غنڈے اور بدماش کرائے پر لیے تھے جن کو پیپلز پارٹی کی ٹوپیاں پہنا کر ریاستی اداروں کے خلاف ہلڑ بازی اور تشدد کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ آصف زرداری اور بلاول زرداری ہلڑ بازیاں کر کے ریاست کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو ٹچ کیا گیا تو وہ ہنگامے اور فسادات کروائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب بلاول بھٹو نواز شریف سے ملنے گیا تھا تو اس نے نواز شریف کو آصف زرداری کا پیغام پہنچایا تھا، اور یہ بھی ڈسکس کیا گیا تھا کہ نواز شریف اس وقت جیل میں ہے اور نہ تو اس کو رہائی مل رہی ہے اور نہ ضمانت مل پا رہی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ طے پایا کہ مل کر اور اکٹھے ہو کر ہنگامہ آرائی اور فسادات کریں گے تاکہ ریاست ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے۔ اس کے بعد آصف زرداری نے پلان بنایا تھا کہ کسی طرح سندھ میں کیس چلایا جائے۔ اگر سندھ میں کیس چلایا جاتا تو وہ سیدھا ججز پر حملہ کر کے بدماشوں کے ذریعے ان کو مروا دیتے۔ ججز کو اور گواہان کو مروانے کی پوری طرح زرداری نے پلاننگ کر رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انٹیلیجنس اطلاع ملنے کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ زرداری اور بلاول کا کیس سندھ میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں چلایا جائے گا۔ اس کے بعد آصف زرداری غصے سے پاگل ہو گیا اور کراچی میں FTC بلڈنگ کی 6ٹی منزل میں آگ لگوا کر سارے کاغذات جلوا دیے۔ اس کے اگلے روز آصف زرداری نون لیگ کو پیغام بھجواتا ہے کہ اب تو کیس سندھ میں نہیں چل رہا، اسلام آباد میں چل رہا ہے، اور اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے بندے اتنی تعداد میں نہیں ہیں جو ہنگامے کر سکیں۔ اس کے بعد مریم نواز نے زرداری کو پیغام بھجوایا
समझाया कि बेफिक्र हो जाओ बंदे, पूरी तरह तैयार हैं, बस तुम्हारे आने की देर है। जैसे ही तुम लोग इस्लामाबाद आओगे तो हमारे गुल्लू बटों ने हल्ला बोल देना है। फिर जब आसिफ जरदारी और बिलावल इस्लामाबाद के नैब के दफ्तर पहुंचते हैं, इसके साथ ही किराए के गुल्लू बट और दहशतगर्द फौरन वहां जमा हो जाते हैं और प्लान के मुताबिक जरदारी के किराए के गुंडे और बदमाश नैब के दफ्तर पर हल्ला बोल देते हैं और इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह नैब ने बिलावल से 28 सवालात पूछे थे जो कि प्रॉपर्टी से मुताल्लिक थे, लेकिन बिलावल एक भी सवालात के जवाब ना दे सका और यही कहता रहा कि ये सब कुछ मेरे बाप ने किया है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और बिलावल को ये यकीन हो गया था कि रियासत सीरियस हो चुकी है और उसका जेल जाना यकीनी हो चुका है। इसके बाद बिलावल नैब के दफ्तर से बाहर निकलता है और मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और नरेंद्र मोदी की जबान बोलते हुए पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम दाग देता है और 43 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी करप्शन पर बात करने के बजाय यही कहता रहा कि कल अदम तंजीमों को पाकिस्तान सपोर्ट करता है, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, भारत कहीं उन्हें ना मार दे इसलिए उन्हें छुपा कर रख दिया है। जरा सोचने की बात है कि अगर यही लोग सऊदीया में, ईरान में या चाइना में इस तरह की बयानबाजियां करते तो कब का इन्हें फांसी पर लटका दिया जाता और इन्हें घर जाने की भी मोहलत न मिलती। पूरी कौम ने देखा कि बिलावल ने रियासत के खिलाफ संगीन गद्दारी की है। इसी तरह वो डॉन लीग्स जो मरियम नवाज छुप कर करवाती थी, आज वही डॉन लीग्स पार्ट 2 खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। अब ये गेंद रियासती इदारों की कोर्ट में है। अब पूरी कौम इंतजार कर रही है कि इन लोगों पर गद्दारी का केस कब चलाया जाता है। ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ जरदारी बिलावल के जरिए बयानात दिलवा रहा है और सारा स्क्रिप्ट आसिफ जरदारी का है, क्योंकि आसिफ जरदारी चाहता है कि बजाय इसके कि वो करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार हो, वो गद्दारी के इल्जाम में जेल चला जाए ताकि करप्शन का केस बैकग्राउंड में चला जाए और अवाम को ये तासुर देने की कोशिश की जाए कि चूंकि रियासत के खिलाफ बयान दिया था इसीलिए उन्हें जेल हुई है और करप्शन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यही हरबा नवाज शरीफ ने आजमाया था। जब नवाज शरीफ जेल जाने वाला था उससे पहले रोज रोज अदालत को गालियां देता, फौज के खिलाफ बयानबाजियां करता, यहाँ तक कि डॉन न्यूज के सहाफी सिरिल मेडा को बुलाकर पाकिस्तान पर मुंबई हमलों का इल्जाम लगा दिया। लेकिन नवाज शरीफ की ये सारी हरकतें उसको करप्शन के इल्जाम से ना बचा सकें। यही स्ट्रेटेजी आसिफ जरदारी की है। जरदारी चाहता है गद्दारी के इल्जाम में जेल जाए लेकिन करप्शन का चार्ज न लगे ताकि इसकी लूटी हुई दौलत वापस ना लाई जा सके। कल को बिलावल इसराइल का साथ देने का ऐलान करे तो उस पर हैरानगी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग जेल जाने से पहले कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये वाज़ेह रहे कि ये सारी हंगामा आराई तब हुई जब बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। इसी तरह बिलावल और नवाज शरीफ की मुलाकात में पर्चियां लिख लिख कर बातें की गई, क्योंकि इनका ख्याल था कि जेल में बगिंग हो रही है और पाकिस्तानी एजेंसियां उनकी रिकॉर्डिंग कर रही हैं। इसीलिए बिलावल और नवाज शरीफ के दरमियान जब भी जेल में कोई अहम बात होती तो उसको पर्ची पर लिख कर एक दूसरे को देते। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त बिलावल और आसिफ जरदारी का चेहरा खुलकर सामने आ चुका है और रियासत के खिलाफ किस तरह ये लोग रोज रोज साजिशें करते रहते हैं। इसी तरह ये भी इतलात हैं कि इस वक्त जरदारी भारतीय खुफिया एजेंसी से मुकम्मल राब्ते में है और भारत ने आसिफ जरदारी को ये पैगाम दिया है कि वो किसी भी तरह अंदर से हालात खराब करवाए और अगर आपके पास बदमाश नहीं है या गुल्लू बटों की कमी है तो हम नून लीग को कह देते हैं, वो आपको दे देंगे, या हम पीटीएम वालों को कह देंगे या एनपी को कह देंगे, बस तुम किसी तरह रियासत के खिलाफ बगावत करो और अंदर से प्रेशर बढ़ाओ ताकि पाकिस्तानी फौज की तवज्जो एलओसी और अफगान बॉर्डर से हट जाए, ताकि हम इसी दौरान दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल करवाएं और फिर दहशतगर्दी करवाएं। इन तमाम सूरत हाल में आर्मी चीफ की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई है और बहुत ही अहम फैसले हुए हैं। इसमें मुमकिना तौर पर यह भी डिस्कस किया गया है कि इस वक्त जरदारी नवाज शरीफ के साथ मिलकर हालात खराब करवाना चाहता है और इसमें पीटीएम जैसे लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा और जो स्लीपर सेल्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया जाएगा। ऐसी सूरत हाल में रियासत ने इन लोगों को पूरी तरह से डंडा देने का फैसला कर लिया है और अब ये लोग बचकर नहीं जा पाएंगे। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की गिरफ्तारी होने जा रही है और बिलावल की ताहयात नाअहली होने जा रही है। बिलावल के हाथ से पार्टी निकल जाएगी और जिस तरह अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी लगी थी, एमक्यूएम लंदन पर लगी थी, इसी तरह जरदारी और बिलावल की तकरीर पर मुकम्मल पाबंदी लगने वाली है और इन लोगों को गिरफ्तार करके इनकी नाअहलियां होने जा रही हैं। इसी तरह अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जरदारी का साथ दिया तो ऐसी सूरत में इन पर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदियां लग जाएंगी।
पड़ेंगी। अब रियासत ने बिलावल और जरदारी जैसे गंदे अंडों और धरती के बोझों से जान छुड़ाने का फैसला कर लिया है। अब या तो ये रहेंगे या रियासत रहेगी। रियासत तो इंशाल्लाह हमेशा रहेगी, लेकिन ये लोग नहीं बच पाएंगे। और बिलावल ने रियासत के खिलाफ बयान देकर अपना केस और बिगाड़ दिया है। इसी तरह पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि ये तासुर दिया जाए कि चूंकि बिलावल ने दहशतगर्दों और कलअदम तंजीमों की बात की थी, इसीलिए उन पर करप्शन का चार्ज लगा दिया गया है। क्योंकि बिलावल और जरदारी को पूरी तरह यकीन हो चुका है कि केस बिल्कुल पक्का है और ये बच कर नहीं जा पाएंगे। इसी तरह इंतहाई अहम जराये से ये भी इतलात आ रही हैं कि उजैर बलोच की GIT को मंजर आम पर लाने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया था कि आसिफ जरदारी ने भारतीय खुफिया एजेंसी और ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए अपनी खिदमात फराहम की थी और उजैर बलोच के जरिए पाकिस्तानी नेवी की तनसीबात और उनके नक्शे दुश्मन मुल्क भारत को फराहम किए थे। इसी तरह GIT में ये भी इंकशाफ किया गया है कि जरदारी ने बेनजीर भुट्टो का कत्ल करवाया था। जब उजैर बलोच की GIT आएगी तो फिर इन लोगों की चीखें कैसे निकलेंगी, ये सारी दुनिया देखेगी। माहिरीन के मुताबिक यही वो वक्त है जब उजैर बलोच की GIT हर सूरत आ जानी चाहिए ताकि इनको एक्सपोज किया जा सके कि ये वो लोग थे जो दुश्मन मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। दूसरी तरफ भारत भी पर तोल रहा है और पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की बातें कर रहा है। भारत के वुज़रा रोज रोज कोई न कोई चुटकला पाकिस्तान के खिलाफ छोड़ देते हैं, जिससे उनकी जहनियत बखूबी वाज़ेह हो जाती है कि इलेक्शन से पहले ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। लेकिन इससे पहले भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज अंदरूनी मामलात में फंस कर रह जाए और अंदरूनी मसाइल इतने बढ़ जाएं ताकि भारत को अपनी साजिश को अमली जामा पहनाने में आसानी हो। और इसी मकसद के लिए दुश्मन मुल्क भारत ने जरदारी और बिलावल को इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है। अब वक्त आ गया है कि जरदारी और बिलावल के साथ वैसा ही सलूक किया जाए जैसे एक गद्दार के साथ किया जाता है, यानी इनकी तकरीरों पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए, इनकी फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए और करप्शन के केसेस का जल्द से जल्द फैसला करके इन पर आखिर में आर्टिकल 6 लागू करके इन लोगों का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मनों का फौरी खात्मा हो और पाकिस्तान बैरूनी दुश्मनों पर पूरी तवज्जो दे सके। और हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं कि ऐसी सूरत हाल के जब पाकिस्तान की अफवाज जंगी मशक़ें कर रही हैं और दुश्मन से निमटने के लिए पूरी तरह तैयारियां की जा रही हैं, ऐसे में दुश्मन यही चाहता है कि अंदरूनी हालात खराब हों। लिहाजा दुश्मन की इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए जरूरी है कि इन लोगों पर फौरी हाथ डाला जाए और इनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक करके जरूर शेयर करें। इसी तरह मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के निशान को जरूर दबाइए। बेल के निशान को प्रेस करने से हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।